So write down heading quadratic equations and उसमें heading लिखो solving inequalities. First topic, हम मोनोटोनस टॉपिक चालू नहीं कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो भाई, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो सब बाद में बात करेंगे. पहले हम मस्त वाला टॉपिक लेंगे, सॉल्विंग इनइक्वेशंस. हेडिंग लिख के नाउ वेट फॉर मी एंड सी ऑन द स्क्रीन. As I told you, when I'm going to explain the concept, तुम्हारा सिर्फ ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए. आ गया स्क्रीन पे ध्यान? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो आ जाओ इधर. फर्स्ट चीज, इनइक्वालिटी इज डिफरेंट फ्रॉम इक्वालिटी लिटिल बिट, है ना. तो धीरे धीरे वही डिफरेंस हमें देखना है. तो अभी हम सबसे पहले इसके बेसिक रूल्स देख रहे हैं. बेसिक रूल्स. सो ये बताओ, x + 3 अगर ग्रेटर देन 4 है तो कैन आई subtract -3 to both the side without changing the sign of the inequality? What do you think? Yes, we Yes, can. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. मैं- No, sir, अगर we इसमें can't. डाउट है तो आपने ऐड बोला है? बस ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों एक ही बात है. तो देखो यहाँ पे पहले एग्जांपल. अच्छा, मुझे लगा मल्टीप्लाई, सॉरी. हाँ नहीं, मल्टीप्लाई नहीं बच्चे. तो लाइक सी दिस, 6 इज ग्रेटर देन 4, लेट्स ऐड +3 ऑन बोथ द साइड्स. लेफ्ट साइड कितना हो गया बच्चों? 9. राइट साइड कितना हो गया? 7. Seven. Inequality is the same thing ना बच्चों? Yes. Even Yes. if you add 1000, Yes. you will agree कि the inequality sign remains same. Come on. Yes, sir. Yes, कि sir. दोनों के बीच में गैप वही रहेगा. बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. लेट्स सब्ट्रैक्ट -2 टू बोथ द साइड्स. लेफ्ट साइड कितना हो गया बच्चों? 4. 4. राइट साइड कितना हो गया? 2. Inequality sign change or it remains same? Same. Remain same. Let's subtract -10. Left side हो गया कितना? 6 minus, that is -4. Minus- 4 minus 10 is -6. -6. I hope Yes. तुम सबको पता है -4 is greater than -6. So inequality. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो first point क्या बोला मैंने? Adding and subtracting any term to inequality does not change the sign. Is that clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Does not affect the sign, does not change the sign. So if I subtract -3 in this inequality, do I have to change the sign or not change the sign? Not Not change changes. the sign. In the same. +3 -3 is greater than 4 - 3 बच्चों. So this becomes x is greater than 1. Yes, sir. Correct everyone? Yes. So we can't transpose that. हाँ, तो बस वही बात करें बच्चे. So can I say कि तुम अब इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप कर सकते हो without worrying about the sign कि 3 को Yes, एक sir. से उधर ले गए. Yes, sir. तो if I say 3 को उधर ले गए, I hope all of you will understand that is same as कुछ ना कुछ ऐड किया है या कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट किया है. Correct or not? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Sir. Yes. That means अगर मैं बोलूँ कि x - 6 is greater than 10, तो अब लेफ्ट साइड में मुझे सिर्फ x चाहिए, तो दैट मीन्स मुझे +6 करना है. बट अब वो सोचने से अच्छा हम ऐसे सोचेंगे कि मैं 6 को उधर ले गया, तो ये 10 + 6 हो गया एंड इनइक्वालिटी साइन विल नॉट चेंज. इज एवरीवन कंफर्टेबल विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. Sir. किसी को यहाँ Yes, तक sir. हाँ, Yes, किसी sir. को यहाँ तक बस किसी को यहाँ तक डाउट? No, sir. No, sir. ओके गुड. नेक्स्ट पॉइंट देखो, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग टू बोथ द साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी. मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को पता है, बट जितना मैं पूछूं उतना इंटरेक्ट करोगे. ओके, सो लाइक लेट्स से आई हैव बीन गिवन 6 is greater than 4. Let's multiply 3 to both the sides. Let's see what happens. Left side becomes 18, right side becomes 12. Inequality sign changes, remain same. Remains the same. Remains same. Same. Let's Same. multiply 20 to both the sides. Multiply 20. Left side becomes 120, right side becomes कितना? 80. 80. Inequality sign changes, remain same. Remains same. Same. Okay, so let's multiply now -2 to both the sides. Negative 6x number minus side 2, changes. plus Sign will minus- change. एक मिनट से, जितना मैं पूछूं अभी उतना इंटरेक्ट करो, अदरवाइज डिस्टर्बेंस हो रहा है. तो 6 into -2 -12, 4 into -2 -8. Come on, interact with me. Lines remain same or changes? Changes. Change. Yes. Changes. ये -2 की स्पेशलिटी है, नेगेटिव की स्पेशलिटी है. Negative. Let's multiply -5. Correct. 6 into 5 -5 is -30.
4 into minus 5 is minus 20. Changes or remain same? Changes. Changes. Yes. So I hope सबको ये clear हो गया है कि if we multiply positive term to both the sides, inequality sign, anybody? Remains. Remains same. Remains same. Inequality sign remains same. But if we multiply negative to both the sides, inequality sign changes. Everyone comfortable with that? Yes, sir. Yes, sir. What about division बच्चों? Division के लिए भी same rule होगा क्या? Same. Same rule होगा. Obviously यार Division ही तो. division is same as multiplication of its reciprocal. Come on, agree करो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो example बताने की भी जरूरत है या it is understood? It is understood. Understood, sir. अच्छा, what about, क्योंकि ये बहुत स्पेशल है तो इसको एक पॉइंट की तरह जरूर बोलेंगे कि if 6 is greater than 4, if I multiply minus 1 to both the sides, that also changes the sign. बिल्कुल okay अभी? Yes, sir. Yes, sir. So I'll tell you what to copy and what not to copy, but उससे पहले एक example लेंगे फिर copy करेंगे. So if I give you a question, solve for x. ये हम साथ में solve करेंगे. Don't worry about that. 5 into 2 minus x is greater than, let's say, minus 15. Solve for x. चलो मेरे साथ करो. First step. Bracket. एक मिनट बच्चे. मैं जितना पूछूं उतना ही ना. फर्स्ट स्टेप में मैं ओपन अप भी कर सकता हूं और डायरेक्टली 5 को डिवाइड करके x पे ला सकता हूं. दोनों मेथड से कर लेते हैं. चलो बताओ क्या. हाँ बोलो. तो ब्रैकेट ओपन करने में डिवाइड कीजिए. हाँ, यहाँ पे इस बच्चे ने बोला ब्रैकेट ओपन करने वाला, तो ये फर्स्ट मेथड ये कर रहे हैं और यहाँ पे डिवाइड वाला कर रहे हैं. चलेगा ना एवरीवन? Yes, sir. कोई भी इतना भोंदू या नालायक नहीं है जिसको ये नहीं पता दोनों से आंसर सेम ही आएगा ऑब्वियसली. चलो फिनिश करते हैं. 10 minus 5x is greater than minus 15. नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या करूं. नेक्स्ट स्टेप 10 को इधर 10 को इधर ले जा रहा हूं तो इट्स लाइक क्या साइन चेंज होगा या क्या? व्हाट डू यू थिंक? नहीं क्या सबको क्लियर है? 10 को उधर ले जाना इज सेम एज तुम 10 को एक्चुअली बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. यस Yes, sir. So minus 5x becomes greater than minus 25. Now what? -5x less than minus 5 Divide से with divide. minus 5. Divide with minus 5. Either you can divide by minus 5 or you can take baby steps. Baby steps मतलब पहले माइनस को भी उड़ा सकते हो, करेक्ट ना? हाँ सर. Yes, sir. तो लेट्स से मैंने minus 5 से डिवाइड किया. minus 5 से डिवाइड किया. इनइक्वालिटी साइन चेंजेस रिमेन सेम. Yes sir. Changes. Changes. Yes. कितना हो गया बच्चों? X is X less X than is less 5. than 5. 5. So this is your answer. Is everyone okay with the first method? Yes sir. Yes, sir. Method भी फटाफट कर दो. Come on. 5 into 2 minus x is greater than minus 15. Divide by 5. 5. Inequality sign changes or remain same बच्चों? Remains the Same. 5 से 5 गया. 2 minus x is greater than minus 3. Next step, 2 को उधर ले जाना. Inequality sign changes, remain same. Remains same. Remains same. So minus x is greater than minus 5. Now multiply by Minus 1. Minus 1. inequality sign Sign changes. changes. Yes. Multiply by minus 1 कर रहे हो तो ये plus 5 आ गया. दोनों आंसर सेम है. बिल्कुल करेक्ट. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस एग्जांपल में किसी को कोई डाउट? Sir, No sir. हाँ, एक एक करके नाम पहले बोलेगा हमेशा. हाँ sir, Shavin Joshi from Khaga. हाँ बोलो बच्चे. In division, the inequality sign doesn't change like multiplication. हाँ वही सेम है. देखिए इधर क्या लिखा है? Multiply positive term. So that goes along with division. If you are dividing positive term to both the sides, inequality remains बच्चे same. If you are dividing negative to both the sides, inequality sign जल्दी से बोल changes. So like in this example, see this. ये भी रुक जा, मैं तो समझा रहा हूँ, मेरी पूरी सुन. पता इस स्टेप के बाद मैंने -5 को दोनों साइड पे डिवाइड किया है ना बच्चे? Yes, sir. तो देख इनइक्वालिटी साइन क्या हो गया? Changes. It changes. बट यहाँ पे देख मैंने 5 को दोनों साइड से डिवाइड किया है. कम ऑन देख. Yes, sir. 5 is positive, negative. Positive. So inequality sign changed or didn't change?
It doesn't change, sir. It doesn't change. Clear, बच्चे? Yes, sir. Thank you. Any other? So Aryan. Aryan. So why do we have to worry about changing the sign? Instead, why don't we simply just avoid the negative sign? Sometimes negative is there, तो अब इसको positive बनाने के लिए we are multiplying by -1 ना बच्चे? I mean like instead of, we can't be just simply put it all on positive and then the simple addition subtraction, because that's okay. But sometimes we may have to do, because sometimes you will not have just a single factor of x, you will have multiple factor of x. See this, धीरे धीरे हमें यहाँ तक पहुँचना है. -6x minus x square minus x is greater than or equal to 0. So then we are not going to be easily able to bring those terms to right side. Agreed, बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. So we need to remember कि इस माइनस को कैसे हैंडल करना है, यहाँ पे माइनस को कैसे हैंडल करना है. So yes, you can do in linear terms कि bring all the terms to the right side, but at the same time we need to know कि if I retain that on the left side, माइनस का क्या होगा वो भी सीखना आना चाहिए. बोल बच्चे? Yes, sir. चलो कॉपी करो जल्दी से. Whatever you find कि तुम्हें कॉपी करना चाहिए, कॉपी करो. I am giving you time. कॉपी करो यहाँ से. Solving inequality. First point. तो 3 नहीं 2 ही क्या हुआ बच्चे? पढ़ लो ना मेरा एडिंग सब्ट्रैक्शन. Your microphone is on. Sorry sir. You are talking with your parents. Please don't do that. You should concentrate on the screen only. Sorry कोई बच्चा लेक्चर के टाइम पे अपने पेरेंट्स या अपने सिबलिंग से बात नहीं करेगा. Whatever doubt you have, interact with me. Yes sir. Sorry, really sorry sir. And it's okay बच्चे. पेरेंट्स से जितना कंफर्टेबल है उससे ज्यादा कंफर्टेबल मुझसे होना है. समझ गया श्रेयांक? हाँ सर. As I told you बच्चों कि फर्स्ट 2 क्लास थोड़ा पेशेंस रहना, हमें हर बच्चे को लेके चलना है. तो ऑब्वियसली कुछ बच्चों के लिए ऐसे तो आता है, हमें इतने भी इमैच्योर नहीं. आफ्टर 3rd क्लास मुझे पता लग जाएगा कौन बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, तो वो जल्दी कर रहा है, तो उसको मैं एक्स्ट्रा सम्स भी देता रहूंगा क्लास के बीच में. एक्स्ट्रा सम्स थोड़े टफर सेंस में वो बच्चा, ताकि उसका भी टाइम वेस्ट नहीं हो. वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू हिम और हर आल्सो कि वो बच्चा अच्छा कर रहा है, तो और अच्छा करने के लिए उसको मोटिवेट करेंगे. अब ये इट्स नॉट लाइक स्कूल कि आई टेल यू कि क्या क्या कॉपी करना है, तुम्हें जो भी इंटरेस्टिंग लग रहा है कॉपी करना है. इज दैट क्लियर ना? Yes, sir. Scroll down. Yes, sir. I I'll know. scroll it down बच्चे. I'll scroll it according to my will कि मैं देख लूंगा यहाँ तक कॉपी हो जाना चाहिए, फिर मैं कर दूंगा ना. ये पॉइंट जरूर लिखना. सर इनइक्वालिटी में एक्सपोनेंट्स कैसे कब आएगा बच्चे? बट वी हैव टू बी पेशेंट एनफ ना. सब एक साथ तो नहीं ले सकते ना, वो भी सीखेंगे. अभी तो सिर्फ सोच तो लीनियर टर्म पे है, अभी तो क्वाड्रेटिक पे भी नहीं आया. एग्री कर? हाँ, धीरे धीरे आएंगे ना यार. एक्सपोनेंट भी डालेंगे, लॉग भी डालेंगे, मॉड्यूलस भी डालेंगे, बहुत सब कुछ करेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी डाल देंगे इसमें, इसलिए तो ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है. मल्टीप्लाई डिवाइडिंग टू बोथ द साइड्स. थियोरेटिकल में ऐसा भी ले सकते हो. इफ a is greater than b, if I am multiplying a into k and b into k, किस पे डिपेंड करेगा? बोलो. Sign. If k is greater than 0, then a into k will be greater than b into k. If k is negative, then a into k will be less than b into k. यस, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हो बच्चों.
I'll ask you when to turn the next page, है ना? So don't tell me कि sir next page, क्योंकि सब बच्चे अलग-अलग स्पीड पे लिख रहे होंगे. अभी शुरुआत में we don't have to worry about speed. We have to worry about हर बच्चे का हर concept clear होना चाहिए. So, Aryan, हाँ, so are we going to have access to this later? बिल्कुल होगा. बट बच्चे, मैंने क्या बोला कि तू लेटर का सोच के अभी लिख नहीं रहा, ऐसा तो नहीं कर रहा है ना आर्यन? No, so I'm already done writing, but will we have access to this later? You in will have- case we have I this? told you in the भाषणबाजी जो मैंने पहले की थी कि all the screenshot as well as recording you will have. Okay? So it's Microsoft OneNote. So will there be Yes, like a OneDrive but where you everyone can have access? अरे तू कहाँ टेंशन ले रहा है बच्चे? कोई पहली क्लास में ना ले रहा हूँ मैं. I'll tell you. I'll give you the PDF of it. Okay? Not Microsoft OneNote. I'll give you the PDF of it. Okay? Okay, sir. ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है यार आर्यन मेरे पे. यहाँ सर झूठ बोल रहे हैं, नालायक. कर रहा है ट्रस्ट? Yes, sir. But अच्छा, हो गया कॉपी सबका यहाँ तक? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Can I turn next page, all of you? Yes. Yes, sir. Okay, कॉपी कर लो ये एग्जांपल इफ यू विश. कोई भी एक मेथड कर लो, इसमें दोनों मेथड कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं. डिवाइड वाला ही कॉपी कर लो, दैट इज लिटिल बिट बेटर. And I am seeing first class में भी कि ये 15-20 kids, those are only interacting with me. I am not seeing other बच्चे. अभिषेक सतारकर, जैसे आकांक्षा, I don't know, मैंने उसका नाम नहीं देखा, but everyone has to interact one time or the other time. ऐसा नहीं होना चाहिए. सेम ही बच्चा है ना, उन्होंने कर दिया तो हम क्या करें? कभी तुम भी करो. Sir, हाँ शर्विन. Sir Sharvin Joshi Saga. हाँ शर्विन, बोलो. Sir, in the second step of that division, why didn't you divide it by -5? We don't, मतलब you can. That is also okay. That is another option. But simplicity के लिए don't you think कि मैं बस यहाँ पे x बनाना चाहता हूँ, तो we are taking baby steps कि पहले मैं 5 को उड़ाना चाहता हूँ. Come on, agree with me? Oh yes, sir. I'm not focusing too much about minus at this step. Minus की टेंशन मैंने बहुत बाद में ली है. Come on, agree कर. यहाँ पे लिए देख. Yes, sir. Yes. So we I'm only want focusing X. just on क्या? Sharvin, I'm focusing in this step just on what? Removing what? 5. Yes, sir. 5. So we can get only X on the But edges. if you divide by -5, will you get the same answer? Yes, आएगा. Yes, sir. वो बात नहीं है. Okay, sir. जो लेफ्ट साइड से पहले दिख रहा है उसको उड़ाते जाओ बस. यहाँ पे 10 दिख रहा था, पहले हमने 10 को हैंडल किया. फिर मुझे -5 दिख रहा था तो मैंने -5 को हैंडल किया. बस. Sir, Anukul here. Yes, Anukul. Sir, in the second step, if we divided by -5, so won't the sign change? Sign will change, but then sign, if you change at the last step or if you change first, your answer will you will get the same. तो बस साइन पहले चेंज कर रहा है, तो उस हिसाब से इनइक्वालिटी भी तो चेंज हो रही है. देख, चल थोड़ी अब दिल की ख्वाहिश पूरी कर ही देते हैं. इधर देख, करें? Yes. हाँ. So 5 into 2 minus x minus 15. We are dividing by बच्चों everyone. किससे? -5 से. -5. Yes. Inequality sign changes, remain same. Changes. Okay. तो बीच के स्टेप्स अलग लगेंगे बट फाइनल आंसर सेम आएगा. 5 से 5 कट गया. यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या बचा? तो 2 minus x डिवाइड बाय -1 और -1 यहाँ पे लिख दूं, सेम है ना? Yes, sir. राइट साइड में क्या बचा है बोलो? 3. 3. यहाँ तक ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Now either you can open it up or you can multiply by -1, whatever is your wish. Let's open it up. Let's open it. चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. क्या आ गया? सोच समझ के बोलना. क्या आ गया? -2 -2 plus Plus X. is less than 3. Everyone comfortable? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा दिल तो खुश हो गया x को देख के. सिर्फ -2 को उड़ाना है. Agreed ना?
Yes, sir. तो -2 को उधर ले जाएंगे. Will I change the sign or sign will not affect? No, no, no. Sign Not change. not affect. और राइट साइड में क्या हो जाएगा? 3 + 2 हो जाएगा. करेक्ट बच्चे? Yes, sir. आंसर आया है क्या? Yes, same answers. शर्वेन, अनकुल, इसको डाउट था? क्लियर? Yes, sir. Okay, can I give you one question now? Everyone copied? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है. एंड डोंट शाउट आउट द आंसर. जब मैं बोलूंगा कि अब आंसर दे सकते हो तभी देना और तभी चैट पे लिखना, उससे पहले नहीं. लेट्स गिव एवरीवन टाइम. एग्रीड ना? चैट पे तो पहले लिख सकते हैं. चैट पे तो पहले लिख सकते हैं आपको. चैट पे तो कभी भी लिख सकते हो, बट मैं हाँ या ना नहीं करूंगा. नॉट टू डिसअपॉइंट दैट स्टूडेंट हु इज ट्राइंग. समझ गए बात को? चैट पे तो बिल्कुल Okay, sir. बट मैं हर बच्चे को साथ में लेके चलना चाहता हूँ. तो शुरुआत के स्टेज में एवरी स्पीड इज डिफरेंट. सो उस बच्चे के लिए जो थोड़ा आराम से कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, उसको हम बॉम्बार्ड नहीं करेंगे. समझ गए ना? हाँ सर. हाँ, चलो करो. -3 × x + 2 is greater than 27. सॉल्व इट जल्दी से. चैट पे कभी भी आंसर लिख सकते हो, बट बोलोगे तभी जब मैं बोलूंगा. अंकित बहुत जल्दबाजी कर रहा है, फिर नालायक बनती कर रहा है. जूते खाने चाहिए. सेम गोज फॉर जैनम. आराम से, डोंट बी इन अ हरी. जैनम ने और इन्होंने, जिसका मैंने कौन नाम लिया था, उन्होंने इनइक्वालिटी के साइन को चेंज नहीं किया. गुड गुड गुड. अरे यार क्या, वेरी गुड. चैट पे तो आंसर देख के खुशी हो रही है मेरे को. गुड 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 गुड. तन्मय, आदित्य, आयुष, आराध्या, आकांक्षा, ललित, रोहन, स्वामिल, वेदांत, मिहिर, शशांक, राणा, अश्विन. अरे भाई थक गया मैं. अभी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो लेट्स नॉट वरी अबाउट दिस. सर हम एक और चीज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए. जो करना है, जो ख्वाहिश है तेरी को सब पूरी कर ले, बट मुझे सॉल्व करके पहले आंसर देगा, फिर दूसरे मेथड ट्राई करेंगे. ओके? हाँ सर. Come on, 30 seconds or enough time for that. सर एक डाउट है. अभी कोई डाउट नहीं. जब क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है, मतलब आपको आंसर कैसे भेजना है उसके ऊपर रिलेटेड है. बोल ललित, टेल मी. वो लेस देन और इक्वल टू के साइन में भेज सकते हैं हम लोग आंसर, क्योंकि अलग से लेस देन के बाद तो इक्वलिटी लिख देना, चलेगा बच्चे? बिल्कुल, है ना? ओके सर. तू यू कैन जस्ट थिंक कि तू मैथमेटिक्स फैकल्टी से ही बात कर रहा है, किसी काउंसलर से बात नहीं कर रहा है. तो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ना. इतना तो थोड़ा समझ सकता हूँ. कम ऑन, है ना? क्यों? यस सर. ओके, आई थिंक इनफ टाइम. एवरीवन, क्या आंसर है? चिल्लाओ, आवाज आनी चाहिए. X less than -11. थोड़ी आवाज आई यार, ज्यादा बहुत तेज बुलंद आवाज नहीं आई, बट ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करूंगा जब इससे थोड़ा सा बेटर वाला होगा. ओके, आई होप अब सबको क्लियर है कि देयर आर वेरियस मेथड्स टू सॉल्व दिस. यू कैन ओपन अप, यू कैन डिवाइड बाय -3 एट दिस स्टेप, यू कैन डिवाइड बाय 3 एट दिस स्टेप. करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Open it up, you can divide by -3, you can divide by 3. सब मेथड से आंसर आएंगे. आप किसी को इस बात में डाउट नहीं होना चाहिए. हमने पिछले क्वेश्चन में 3 मेथड तो देख लिए थे. एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो मैं सिर्फ एक मेथड करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा. विल दैट बी फेयर? ओके ना? Yes, sir. तो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है क्या? डिवाइड बाय व्हाट? कम ऑन. -3. तो पहले ही बता दो, साइन चेंजेस रिमेन सेम. Sign changes. Yes. -3 × x + 2 divided by -3, 27 by -3. साइन चेंजेस. लेफ्ट साइड में -3 से उड़ गया. x + 2 बचा है. राइट साइड में -9 बचा है. आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. नाउ 2 को उधर ले जाना, तुम्हें पता है 2 को उधर ले जाना इज सेम एज सब्ट्रैक्शन. साइन विल नॉट अफेक्ट. एग्रीड ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that becomes x less than -3.
x less than -11 is the answer. किसी को डाउट, यू कैन आस्क. No, sir. सर हम मतलब हम इक्वालिटी रख वहाँ इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी को सॉल्व करके कोई एक साइड पिक कर सकते हैं ना. ऐसे मत कर बच्चे, क्योंकि फिर माइनस माइनस का कुछ भी अफेक्शन हो रहा है, साइन चेंज करना है, तुझे कुछ पता ही नहीं लगेगा ना. डोंट डू दैट. और अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि वो तो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को अगर सेम तरीके से हैंडल करते हैं ना, तो वो ब्लंडर हो जाता है, बहुत बड़ी गलती हो जाती है. हाँ सर, बस लीनियर के लिए. लीनियर के लिए तो ठीक है, बट तू साइन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर देखो दिमाग में रखना पड़ेगा. हाँ ऐसा ऐसे मत, उसमें वैल्यू डाल के करना पड़ेगा. ऐसे ठीक है, तो मत कर, क्योंकि गलती करेगा. ठीक है, कभी ना कभी करेगा, तो डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट. एनी अदर बच्चा बिफोर आई गिव यू नेक्स्ट? चलो एक और क्वेश्चन करो, फिर आगे की थ्योरी पढ़ते हैं. सॉल्व -5 into x minus 2/3 minus 2x minus 1/2 कर लोगे ना, डरोगे तो नहीं? सर ब्रैकेट में सेकंड टर्म आपने बोला 2x minus 1/2 एंड लिखा 4, तो 2 है कि 4? तो पाप तो ना कर दिया, जो लिखा है वही कर लेना. चेंज कर दिया दिमाग में मैंने. एक्चुअली मैंने 2 रखा था ना बच्चे, तो 2 से कैंसिल हो रहा था, इसलिए आई चेंज है. ओके, ओके तो बोल दे नालायक. हाँ सर. चलो सॉल्व इट बच्चों. बेबी स्टेप्स लेना. सबसे पहले किसको उड़ा दो? -5. सबसे पहले -5 को उड़ा दो, फिर उसके बाद एलसीएम लो. कम ऑन, लेट मी सी आप किसका आंसर टाइम पे और सही आ रहा है. डोंट बी इन हरी आराध्या, डोंट बी इन हरी अनव. मुझे सही आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू रशिंग एंड डूइंग अ मिस्टेक एवरी टाइम. सुन लिया आराध्या एंड अनव? यस सर. इसका माइक्रोफोन ऑन है भाई. आदित्य सराफ बंद रखो. देखो अभी तक 4 आंसर आए हैं, चारों में 2 अलग है और 2 अलग है. 5-6 आ गए अब तो. ध्यान से करो. मैनी ऑफ यू आर डूइंग अ मिस्टेक हियर, आई एम एबल टू सी. अभी मैं किसी का हाँ या ना नहीं कर रहा हूँ. यू हैव वेरी मच टाइम कि आराम से करो. ओके आराध्या, ओके ओके समझ गया मैं. डोंट बी इन हरी, क्योंकि 20 ऑफ यू हैव सेंड मी आंसर और मुझे 10-12 का सेम दिख रहा है. 8-7-8 बच्चों का अलग लग रहा है, मतलब 7-8 बच्चे मुझे गलत लग रहे हैं, तो इसलिए चेक करो. डोंट बी इन हरी. जो स्कूल की आदत है ना, बस पहले आंसर कूदना है, भले हाथ पैर नहीं आंसर के, वैसे नहीं. डोंट बी इन हरी, आराम से करो. Okay, last 30-40 seconds. मैं तो रैंडम क्वेश्चन बनाया, तो आई डोंट नो द आंसर. अभी देख लेंगे. बहुत सारे बच्चों का 43/2 से डील कर रहा है, तो आई एम अज्यूमिंग वही सही होगा. कुछ बच्चों का 37/2 भी आ रहा है. विल सी. ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, पूरा लिखो.
चलो इनफ टाइम। बहुत बच्चों का ना आंसर ये दिया है, तो आई एम अज्यूमिंग यही सही होगा। कुछ बच्चों ने ये भी दिया एक्चुअली, x ग्रेटर देन इक्वल टू 37/2 ना। देखते हैं, मुझे आंसर याद नहीं एक्चुअली बिकॉज आई हैव गिवन ए रैंडम क्वेश्चन। लेट्स सी कौन सा आंसर सही है। ज्यादातर बच्चों ने यही दिया है, तो मुझे लग रहा है 43/2 seems to be correct one. चले सॉल्व करें एवरीवन। Yes, sir. Sir, this is one. You can convert it into decimals, no? That's okay. In JEE every time you have to give me the answer in fractions only. Decimal में आंसर इतना important नहीं है, छोड़ते भी नहीं, ऑप्शंस भी नहीं होते हैं। ओके Yes, sir. ओनली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आजकल आने लग गए जिसमें वो न्यूमेरिकल में डेसिमल में पूछते हैं बबल करने के लिए। अदरवाइज all the options single correct multiple correct will be in fractions only. Okay, but even if you write down answer as 21.5 कोई गलत है ना obviously। चलो सबसे पहले अब मैं -5 से डिवाइड, हाँ -5 से डिवाइड किया, साइन चेंजेस, इनइक्वालिटी साइन चेंजेस, रिमेन सेम बच्चों, चेंजेस, लेस देन 20 by -5 चलेगा ना सबको? यस सर, हाँ सर। ओके Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग एलसीएम। LCM 12. 3 into 4 12। यहाँ पे कौन मल्टीप्लाई होगा इससे? 4x minus 8, 4x minus इस टर्म से कौन मल्टीप्लाई होगा? 3, x plus 6 इज लेस देन -4। एवरीवन ओके? यस सर, Yes, sir. ना नहीं आता तो फिर तपस्या ये आपको हिमालय पे जाके करनी है, मैं नहीं समझा पाऊंगा। समझ गए ना? एलसीएम लेना तो आता है ना? Yes, यस सर, Yes, sir. Yes, sir. तो इज लेस देन 3 into 4 12 हो गया। अब ऊपर क्या करेंगे? 4x minus 8 ब्रैकेट ओपन, Expand करके Bracket Expand it. 4x minus 8 expand कर लो। I minus hope यहाँ पे 6x ब्लंडर नहीं करते हो, 7th 8th क्लास की मिस्टेक नहीं करते हो। माइनस क्या आएगा? 6x minus minus x x plus 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 3. plus क्या 3. आएगा यहाँ पे? 3 plus का sign है। क्या ये समझाने की भी जरूरत है कि ये प्लस क्यों आ रहा है? Nice, sir. नहीं sir. नहीं सर, मतलब वो उस टाइप का बैच नहीं होना चाहिए। इज लेस देन -4, सो ऑब्वियसली 12 x हमको multiply, करेक्ट किया। 4x Minus minus 6x is -2x minus 2x minus minus 5, 2x minus 5 -8 plus 3 is -5 divided by 12 is less than 12 -4। ट्रांसपोज कर दिया। हाँ सर, 12 multiply को minus 12 मल्टीप्लाई कर सकते both by हैं। 12. हाँ एक मिनट बच्चे, कैन आई से 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना इज सेम एज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड 12 से? एवरीवन Yes. Yes, sir. Yes, sir. विल द साइन चेंज और डज नॉट चेंज? Does not change. Not change. Does not change. -2x minus 5 is less than equal to Minus 48. 48. because we are multiplying by +12 on both the sides. So this implies -2x। अब -5 को इधर ले जाऊंगा, तुम सबको पता है साइन चेंज नहीं होगा। is less than -43। लास्ट स्टेप डिवाइड बाय -2, Minus 2. Minus 2. तो x is greater than 43. Greater than or equal to Greater 43 than by 2. equal to. तो x greater than equal to कितना आंसर आ गया? 43/2, 21.3. कोई डाउट यहाँ तक? नहीं नो sir. सर, No, sir. कुछ बच्चों का अब जल्दबाजी में गलत क्यों आ गया? अब नालायकों का देखते हैं किन्होंने बहुत जल्दी आंसर दिया और गलती करी। तो एक एक झूठे मारने का टाइम आ गया है। Sir, 37/2 उससे ही आ रहा है, वो प्लस को माइनस लेने से। वो झंडे काट दे नालायक। क्यों करा ऐसा हरीश? और किसने करा? 7th 8th वाला ब्लंडर ही किया जो आपने बोला। अब ध्यान रखेगा ना बच्चे? बस वही चाहता हूँ मैं बच्चे। हाँ सर, हाँ सर। अभिषेक है ना, ये सब गलती मत करे यार इतनी जल्दबाजी में। अखिल ने क्या की मिस्टेक? If you have mics, you can speak up. Ayati? Sir, I changed the sign. But I hope everything is clear now, everyone. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं अबाउट ब्रैकेट्स। बच्चों कभी भी एक्चुअली ऑप्शंस में मैथमेटिकल में ऐसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आंसर में नहीं होगा, ऐसे नहीं लिखते हैं। लिखते हैं कभी कभार, बट वी राइट डाउन दिस एज क्या लिखते हैं? एनीबडी? X is element of X minus. belongs Sorry, to 4 4 to comma infinity. Belongs to. comma infinity. हम ऐसे आंसर लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 4 टू व्हाट इज दिस सिंबल? Infinity. Infinity. कुछ चीजें मैं फटाफट पढ़ा रहा हूँ, That is the closed bracket. तो आप कुछ चीजें पढ़ा रहा हूँ, सुन लो पहले भी। सबसे पहले तो इन्फिनिटी के बारे में, क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है इन्फिनिटी एक्चुअली क्या है?
समथिंग बाय जीरो है? क्या इन्फिनिटी समथिंग बाय जीरो होता है क्या? नहीं सर डेस्टिनेशन वी कांट रीच। क्या 1/0 इन्फिनिटी होता है क्या? नहीं, वो नॉट डिफाइंड होता है। नहीं सर, नॉट डिफाइंड होता है। अगर मैथमेटिक्स में कभी भी डिनोमिनेटर, मैथमेटिक्स क्या कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो आए, दैट मींस दैट इज नॉट डिफाइंड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट डिफाइंड? सर वो पता नहीं है। The answer does not एग्जिस्ट नहीं करता। That is not valid. What you have में written, एक what you have written is not acceptable anywhere. Not defined मतलब that is not word पे जाओ, defined ही नहीं है वो। क्या ये सबको क्लियर है? कभी डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो नहीं आ सकता। Yes, sir. Yes, sir. बट इन्फिनिटी क्या होता है? आप सुन लो एक बार। इन्फिनिटी is just a symbol. It is an expression for writing down very very big number. Symbol for writing down very very big number. तो कैन आई से वेरी बिग नंबर तो एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। वेरी बिग नंबर की कोई डेफिनेशन है ना? वेरी बिग नंबर तो जो भी तुम बोल रहे हो उससे और बड़ा सोचते जाओ। कम ऑन। हाँ सर। तुम Yes, बोलोगे sir. 10 की पावर 24 बहुत बड़ा नंबर है, बोलूंगा 10 की पावर 240 उससे भी बड़ा है, मैं बोलूंगा 10 की पावर 2400। फिर अगर मैं ऐसे कर दूं तो और बड़े हो गए। तो कम ऑन, एग्री करो। हाँ सर। Yes, Yes, sir. Yes, sir. It is Yes, just sir. a symbol to write down very very big number. But can you attain infinity? कि भाई यहाँ पे है infinity, No. ऐसा कोई attain कर सकता No, है? sir. No. No, sir. For your clarity, just for your clarity, देखो इधर मैं डिनोमिनेटर में टर्म को कम करते जा रहा हूँ। देखना 1/0.1 10, 1/0.01 100, 1/001 1000। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डिनोमिनेटर में टर्म की वैल्यू कम करते जा रहा हूँ तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ते जा रहा है। 1/0.001 is 10,000. 1/0.401 is 10 की पावर 5. तो कैन आई से अगर मैं डिनोमिनेटर में कम करते जाऊंगा तो ये नंबर बढ़ते जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. What is infinity is roughly I can say 1/0.0000 uncountable times 0 and 1, ऐसा कुछ। Come on, uncountable. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो कैन आई से अगर infinity is just a symbol, it is not a fixed number, तो ये भी कोई फिक्स नंबर नहीं है। Come on, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. इसको अब से हम 0 प्लस की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। 0 प्लस मतलब 0 के जस्ट राइट में जो नंबर है वो 0 प्लस है। Is 0 plus a fixed number or not a fixed number? Not a fixed number. Not a fixed number. Is 0 plus anybody? क्योंकि अगर What is फिक्स नंबर होता तो उससे भी छोटा just a symbol to represent a very very small positive number. To represent very very small positive number. So अब से सबको कसम खा लेनी है, इन्फिनिटी ध्यान रखना है। 1/0 प्लस क्या होता है? Infinity. Infinity. गैस करो माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? 1/0 minus. 1 by minus. तो 0 माइनस क्या होता है? वही छोटा नंबर। Something just to the left of left. Just before Just zero. below 0. बिल्कुल करेक्ट। Just one Just a small decimal number, place very left very of the small zero. number to the left of the zero. क्या एवरीवन क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कभी आप तुम्हारे व्हाट्सएप पे फालतू गिरी आए जो तुम बच्चे टाइप हरकतें करते हो ना, फाइंड द मिस्टेक इन दैट। सुन रहे हो? इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी को कुछ लिख दिया 1/0 इज 3/0। मतलब कुछ कार्टून कंती करेंगे, तुम्हें बेटर पता है। फिर 0 0 को काट देंगे, hence 1 = 3। फाइंड द मिस्टेक इन दैट। सर ऐसे नहीं होता। क्या बोलोगे, कहाँ मिस्टेक है? यही मिस्टेक है। 1 plus 1/0. 1/0 प्लस कुछ होना चाहिए, वो मिस कर दिया। अरे सर 1/0 इक्वल्स इन्फिनिटी लो और फिर दोनों को साइड पे टर्न करो तो -10 = 8 आएगा। और मजे आ गए हैं। इन्फिनिटी नहीं लिख सकते ना सर? बिल्कुल करेक्ट। फर्स्ट स्टेप से ही गलती है। इन्फिनिटी को कभी बराबर नहीं लिखते। क्या ये समझते हो? ये इन्फिनिटी कितना बड़ा नंबर है, ये इन्फिनिटी कितना बड़ा नंबर है, तुम्हें सर डिफाइंड ही नहीं है ना वो। हाँ। स्टॉपेज ही नहीं है उसका। वो जहाँ स्टॉप करेगा मैं उससे बड़ा नंबर बता सबको दूंगा। क्लियर है, बिल्कुल करेक्ट। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 नहीं होता है। क्या होता है? क्या नहीं सर। नहीं, sir. नहीं, sir. सर एक वैल्यू दूसरे से इनडिटरमिनेट होता है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज कॉल्ड एज इनडिटरमिनेट, जिसको डिफरेंट क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग वैल्यू निकल सकती है। हो सकता है बच्चों ये 10 की पावर 1000 को तुमने लिखा हो सकता है ये 10 की पावर 999 को लिखा हो। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. ये रीमान पैराडॉक्स है ना? बिल्कुल सही है। इसको बोलते हैं लिमिट्स। तो लिमिट चैप्टर में देखेंगे
बट ये तो एग्री करोगे कि infinity plus infinity is going to be twice of infinity या infinity बस? Infinity. वर्ड्स में बोलो, वर्ड्स में बोलो, बहुत बड़ा नंबर प्लस बहुत बड़ा नंबर क्या होगा? बहुत बड़ा नंबर। विदाउट इसमें नहीं सर। सर infinity into infinity Infinity. बहुत बड़ा नंबर। नालायक मिस्टेक है ना, नालायक मिस्टेक नहीं करनी है। क्या infinity माइनस infinity क्या जीरो नहीं होता है? Zero. और infinity by infinity यूं नहीं उड़ा दो, अरे मजा आ गया है। Not equal to. हाँ, ये कुछ नहीं हुआ, मतलब ये इनडेटरमिनेट फॉर्म्स है। इनडेटरमिनेट फॉर्म्स का ये मतलब है कि इनके क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग आंसर आ सकता है। कम ऑन एग्री करो, क्वेश्चन के हिसाब से क्यों? क्योंकि ऊपर वाला इंफिनिटी क्या है, नीचे वाला Depends on which infinity। rate the number goes to infinity. बिल्कुल। इसको कब पढ़ेंगे हम? लिमिट्स चैप्टर में। कब पढ़ेंगे? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। द सेकंड चैप्टर ऑफ कैलकुलस, सेकंड चैप्टर ऑफ कैलकुलस। बच्चे मैंने क्या बताया था, जब मैं बोल रहा हूँ तब बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है, उसके बाद मैं टाइम दूंगा, जो भी डाउट पूछना है ना। चलो अब यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर एक डाउट है। हाँ ललित। सर 1 by infinity फिर 0 क्यों लेता है? बिल्कुल करेक्ट। 1 by infinity, व्हाट डू यू थिंक बच्चों, ये बहुत छोटा नंबर होगा ना, जीरो की तरफ पॉजिटिव वैल्यू होगा। कम ऑन। हाँ सर, जस्ट Yes, sir. पॉइंट साइड अब में तू ये बता कि हाँ ललित ये बता कि 1 by infinity इट इज अ एक्सेप्टेबल क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन में 1 upon infinity लिख के दे सकता है क्या तेरे को? नहीं सर। वो तो हम लिमिटिंग, हम उसकी जब वैल्यू जीरो रख रहे हैं वो लिमिटिंग वैल्यू रख रहे हैं। लिमिटिंग मतलब टेंडिंग वैल्यू, अप्रोचिंग वैल्यू। कम ऑन, इस वर्ड से थोड़ा सोच सकता है, अप्रोचिंग, टेंडिंग वैल्यू। बड़ा होते जाएगा तो जीरो के पास आएगा, होते जाएगा तो Almost जीरो zero. टेंड करेगा। आंसर के पास। ये एग्जैक्ट जीरो कभी नहीं होता है, बट जब जिस क्वेश्चन में 1 upon infinity तू लिख रहा है वहां पे वैसे भी तो लिमिट की बात कर रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर सकता क्योंकि एग्जैक्ट इंफिनिटी होता नहीं है। एग्री कर, समझा ललित? कहाँ गया भाई? हाँ तो यस, जब तू 1 by infinity बोल रहा है ना जीरो, तो वो टेंडिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है, अप्रोचिंग वैल्यू है। तब इन्फिनिटी लिखना भी क्वेश्चन थोड़ा लिख के देगा, वो तो हम किसी क्वेश्चन को उस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे होंगे। इंटरप्रेट मतलब हम भी टेंडिंग वैल्यू सोच रहे होंगे, अदरवाइज 1 by infinity तो 0 प्लस होता है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। चलो किसी को यहाँ तक डाउट? Agreed. कोई क्वेश्चन था हाँ बच्चे। सर 0 by 0 फिर क्या होएगा? हाँ तू बता, डिनोमिनेटर में जीरो आते ही हम क्या लिखते हैं, जल्दी से बता। नॉट डेफिनेट। ऊपर भी जीरो आ रहा है तो इट डजंट मैटर, वो नॉट डिफाइंड नहीं है। तू क्यों पूछ रहा है मैं बता देता हूँ, चुप रहे। हाँ एक मिनट रुक जा। तू क्यों पूछ रहा है? क्योंकि तूने लिमिट्स या कैलकुलस कभी पढ़ा होगा या कुछ देखा है तूने, तो तूने उसमें 0 by 0 के कुछ क्वेश्चन का आंसर देखा होगा, 1 2 3 4 जो भी है ना, तो इसलिए पूछ रहा है। तो वो एक्चुअली वो 0 by 0 नहीं होता है, जहाँ भी तूने पढ़ा है वो खुद भी टेंडिंग वैल्यू होती है। और वो चैप्टर कौन सा कहलाएगा? कम ऑन एवरीवन। लिमिटेशंस। तो जहाँ पे वहाँ पे जब हम 0 by 0 बोलते हैं ना बच्चे, वहाँ पे एक्चुअली वो टेंडिंग टू जीरो का क्वेश्चन होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो बच्चों, एवरीवन, अब तुम इतना पूछ ही रहे हो तो देख लो। x² - 4 upon x - 2 LT stands for, एक मिनट रुक जा बच्चे, LT stands for limit x, इस सिंबल का मतलब क्या होगा? कम ऑन, as approaches tending to goes to। हाँ x is close to 2, x is not 2। क्या x 2 है क्या? no sir No, sir. x क्या है? 2 के जस्ट राइट में है या फिर 2 के जस्ट लेफ्ट में। तो अभी मैं इतना इलेबोरेट नहीं करना चाहता, बट थोड़ा रफ में सोचो कि x को 2 रख रहा हूँ तो 0 by 0 आ रहा है। कम ऑन देखो। yes sir Yes, sir. but those are tending values। कम ऑन एग्री करो बस, जितना मैं पूछूं कि x को 2 रख रहा हूँ तो 0 by 0 आ रहा है। Yes. Sir. बट मैं क्या एग्जैक्टली x को 2 रख सकता हूँ क्या? no sir because it is not to Sir. तो इस सिंबल का मतलब ही होता है टेंड्स टुवर्ड। तो कैन आई से एक्चुअली x को 2 प्लस रखना चाहिए या 2 माइनस? Yes, yes sir Yes, sir. जब ये 0 by 0 आ रहा है वो खुद भी क्या है? 0 plus 0 minus 0 minus 0 और फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बस वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। 1.99 कैसा आ रहा है? x + 2 × x - 2 डिवाइडेड बाय x - 2। x - 2 से x - 2 कैंसिल हो जाएगा। 0 by 0 फॉर्म हट चुका है क्योंकि अब डिनोमिनेटर में 1 बचा है। देखो जल्दी से एग्री करो।
Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है या टेंडिंग वैल्यू पूछ रहा है? Tending value. Come on, हर बच्चा एग्जैक्ट करेगा कि इस पूरे की वैल्यू वहीं पे टेंड करेगी जहां पे x 2 पे टेंड करेगा। हाँ सर। Yes, sir. जब x 2 पे टेंड करेगा तो इस पूरे की वैल्यू 4 पे टेंड करेगी। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 4 है। तो हाँ इस सर, question पर हमें का नोट भी क्या है? करना है कि नीचे वाला फंक्शन और ऊपर वाला फंक्शन सेम नहीं है। हाँ वो बस सेम बाकी सारे वैल्यू पे नॉट सेम है, इक्वल टू बस 2 वो पे सेम। 2 पे मैंने क्या बोला? डिफरेंट। मैंने क्या बोला? एक एक करके आराम से पूछो। तो यस, ये वाला क्वेश्चन क्या 0/0 फॉर्म के हैं और फिर कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए उनकी लिमिटिंग वैल्यू निकल रही है। बाय द वे, अगर नीचे सेम फैक्टर नहीं आता, x+3 आ रहा है, तो उसकी डायरेक्टली लिमिटिंग वैल्यू निकल जाएगी। कम ऑन एग्री करो। x को 2 रखो, 0 पे टेंड करेगा। जल्दी से एग्री कर बच्चे। 0/5 पे टेंड कर रहा है। Yes, sir. देख जल्दी से एवरीवन। सर बस बीच में नहीं। ओके x को 2 रखेंगे तो ये वाला फैक्टर 4 पे टेंड कर रहा है। कम ऑन बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 0 पे टेंड कर रहा है। कम ऑन। Yes. और x को 2 Yes. रखेंगे तो Yes sir. 2 पे टेंड कर रहा है, तो ये पूरा 5 पे टेंड कर रहा है। करेक्ट ना? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. तो उसका आंसर क्या होगा, मैं अभी तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो डोंट आस्क मी टू मच अबाउट लिमिट। लिमिट इज नॉट द चैप्टर दैट वी आर डूइंग। वो तो एक बच्चे ने बस पूछ लिया था कि 0/0 क्या होता है, इसलिए मैं एलेबोरेट कर रहा था। वो 0/0 होता ही नहीं है। क्या होता है? लाउड वॉइस में बोलो। 0 Not plus. defined. Tending to 0 upon tending to 0/0 बोल रहा है, तो एक्चुअली वो टेंडिंग टू 0 बाय टेंडिंग टू 0 की बात कर रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट 0 बाय एग्जैक्ट 0 तो क्या होता है? not defined. Not defined. Not defined. क्या नहीं से इतना आप ट्रस्ट कर सकते हो कि लिमिट में अभी घुसने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट विल इन्वॉल्व सो मेनी क्वेश्चन जो भी मैं आंसर करूंगा नहीं। करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. लिमिट चैप्टर की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। चलो यहाँ तो कोई डाउट बताओ इन्फिनिटी के बारे में, लिमिट के बारे में नहीं। Sir, so 0 plus is the value which is the closest to 0, but not 0, right? यस बिल्कुल करेक्ट। इज 0 प्लस अ फिक्स नंबर या 0 प्लस जस्ट अ सिंबल? Okay. Symbol. इट इज नॉट अ फिक्स नंबर। तो कई क्वेश्चन में तेरे को 0 प्लस कभी दिखेगा क्या? बता, क्वेश्चन में दिखेगा क्या? नहीं। No. वो तो 0 प्लस हम लिखते हैं कुछ चीज को समझाने के लिए। कैन आई से इससे समझ में आ गया कि हम चीज लिखते हैं समझाने के लिए। Yes, sir. ये वाला पेज बच्चों, ये वाला पेज मैं अभी लिखने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करा रहा हूँ। ये तो मैं स्क्रीनशॉट दूंगा तब लिख लोगे जिसको लिखना चाहते हो। कैन आई से लाइक? Yes, sir. Please continue. Yes, sir. क्योंकि इसमें इतना लिख के सब की वापस कोई जरूरत नहीं है और सबका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो अगर कोई लिखना चाहता है तो वो एक पेज छोड़ देगा, घर पे लिख लेगा जब मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा। कैन आई से इतना तो कर सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिसको लिखना है वो एक पेज छोड़ दो। जिसको इन्फिनिटी के बारे में सब कुछ पता था वो मत लिखना, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आना चाहिए, पता होना चाहिए। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? No, sir. No, sir. What is infinity? Loud voice. What is infinity equal to? 1 upon? Very big 1 number. upon 0. Upon? 1 upon 0. 1 upon 0 plus or 1. 0 plus. 1 upon 0 क्या होता है? Not Not defined. 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 Infinity a fixed number or just a symbol to write very very big number? Symbol. Symbol to write very To big write a number. big Symbol number. to very big number. आगे बढ़ रहे हैं। About brackets. अब ब्रैकेट नोटेशन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से तो वेरी इंटरेस्टिंग वेवी कर्व पढ़ेंगे। वेवी कर्व कि इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक में सॉल्व करने के लिए, इनइक्वालिटी क्यूबिक में सॉल्व करने के लिए, बट अभी बेबी स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। तो ब्रैकेट्स के बारे में इधर देखो। ओपन ब्रैकेट्स, क्लोज ब्रैकेट्स, मिक्स ब्रैकेट्स एंड चौथा कर्ली ब्रैकेट्स। मैं लिख रहा हूं, तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से सोचो यार, ठीक है? चलेगा एवरीवन? सोचना। हाँ, sir. इस सिंबल का मतलब क्या होता है पहले ये तो बता दो। Belongs to. Belongs to. मतलब कभी An बच्चों में element of. लिखना चाहता हूँ, इधर देखो, इधर देखो। x is less than 6 is less than 4। क्या मतलब x किससे बड़ा है हमेशा? 4 से। 4 से एंड एट द सेम टाइम x किससे छोटा है? 6. 6 से.
अच्छा, इसके हिसाब से क्या x 6.1 हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ 3.9? सर आपकी आवाज नहीं सर। सर ओके, कैन x be 5.2? सर इधर x Yes. belongs to Sir. real number integer क्या जितना है? मैं पूछ रहा हूँ उतना, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, हम सिर्फ रियल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, डोंट थिंक अबाउट इमेजिनरी नंबर्स। कैन x be 5.2? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसको हम कैसे लिखते हैं बच्चों? ऐसे लिखते हैं, x belongs to एक इंटरवल के बीच में है। कौन सा इंटरवल? कम ऑन वर्ड्स में बोलो। 4 4 and 4 6. 6. and 6. 4 to 6 के बीच में है। Yes, sir. Yes, sir. तो कैसे लिखते हैं? देखो, ओपन ब्रैकेट्स 4 एंड 6 पे भी ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब है x कैन टेक एनी वैल्यू between 4 to 6 but excluding 4 and excluding, come on, 6. तो आई थिंक इतना लिखने के बाद तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये चीज और ये चीज सेम है। कम ऑन, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला और ये वाला चीज सेम है। कम ऑन, एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बट हमारा मैथमेटिकल नोटेशन ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है। हम ये ऑप्शन में भी तुम्हें दिखेगा, या यू मानो कि धीरे धीरे तुम्हें और बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें बिलोंग्स टू इंटरवल वाला ही लिखना पड़ेगा। सो यस, यू हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग डाउन लाइक दिस, बट धीरे धीरे यू हैव टू गो फॉर नाउ ब्रैकेट नोटेशन। तो x बिलोंग्स टू 4 to 6, जल्दी से यस और नो मैं जो पूछूं, कैन x be 6.1? No, sir. No, sir. कैन x be 2.9? No, sir. Can x be 3.99999? No, sir. No, sir. Can x be 4? Yes, No, sir. sir. No, sir. No, sir. Excluding 4, excluding 4. x cannot be 4 क्योंकि 4 पे कैसा ब्रैकेट है? ओपन। कैसा ब्रैकेट है? रिपीट करो। Open. Bracket. क्लोज ब्रैकेट क्या होगा वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। अभी x बिलोंग्स टू क्लोज 4 से क्लोज 6, उसकी भी बात करेंगे, बट ये क्लोज ब्रैकेट्स होते हैं। सो यहाँ पे इसी एग्जांपल में, फर्स्ट एग्जांपल में, कैन x be 4.2? Yes, Yes, sir. 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 4.9? Yes, Yes, sir. sir. x 5? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can x be 5.99999? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Can x be 6? No, No, sir. 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 क्या सबको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है? ओपन ब्रैकेट्स? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. लिखना नहीं है, अभी सिर्फ समझना है। डोंट राइट, लर्न पहले। आई नो अभी बहुत इजी कर रहे हैं, बट मैं तुम्हें बोल चुका हूँ कि पेशेंस इतना तो रख सकते हो ना कि फर्स्ट क्लास थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, नेक्स्ट क्लास से मोमेंटम बनाएंगे फास्ट वाला। कर सकते हैं ना इतना पेशेंस? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, लाउड वॉइस बोलो। हाँ यार Sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो नेक्स्ट ब्रैकेट का मतलब मैं समझाना नहीं चाहता, तुम खुद ही बताओ। कैन x be 4.2? Yes. Yes, Yes, sir. Sir. Can x be 3.9? No, sir. No, sir. No, sir. Can x be 3.999? No, sir. Sir. अब इम्पोर्टेंट, कैन x be 4? Yes, Sir. Yes, sir. Sir. आई होप डिफरेंस देख रहे हो दोनों में। यहाँ पे x 4 नहीं हो सकता था, यहाँ पे हो सकता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, कैन x be 5 here? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Can x be 5.999? Yes, Yes. sir. Yes, sir. 6? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Can x be 6.001? No, No, sir. sir. तो यस, इसका भी मतलब बिल्कुल क्लियर है। आई होप x कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 4 to 6। यस, ये भी इंटरवल है, तो 4 to 6 के बीच में तो कोई भी वैल्यू लेगा, बट इंक्लूडिंग 4 या एक्सक्लूडिंग 4? Including 4 and 6. Including 4 and 6. And 6. Including 6। क्या सेकंड पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. कोई डाउट यहाँ तक? एनीवन? No, sir. अच्छा, ये भी चीज क्या सेम है? इसको कैसे लिखेंगे? इस टाइप में कैसे लिखेंगे? रेड टाइप का कैसे लिखेंगे? X is greater than or equal to 4 and less than or equal to 6. 4 and less than equal to 6. ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब कोई बच्चा पूछ रहा था तो पूछ सकता है वापस। चलो, गुड। मिक्स ब्रैकेट, एज द नेम सेज मिक्स है, ओपन और क्लोज का मिक्सचर होगा कोई। लाइक लेट्स से एग्जांपल, x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखना कैसा ब्रैकेट्स है, 4 पे और 6 पे कैसा ब्रैकेट है। समझाने की भी जरूरत है, समझ में आ गया?
समझ में आ गया समझ में आ गया सर चलो फटाफट बताओ। Can x be 3.99? No, sir. सर no sir. Why no? Why no? because there is it has open open bracket including X4 is not included. Because 4 पे open है. Can x be 4.001? Yes sir. Can x be 5.9? yes Sir. Yes sir. Be 6. Yes, sir. क्योंकि 6 पे क्लोज ब्रैकेट है. कोई डाउट यहाँ पर? no No, sir sir. ओके लास्ट वन. ये 4 पॉइंट दिख रहा है या मेरी फोटो से छुप रहा है? दिख रहा है. दिख रहा है सर. दिख रहा है दिख रहा है सर. फोर्थ इज कर्ली ब्रैकेट. कैसे लिखते हैं? x belongs to curly bracket 4 and 6 लेट्स से. मैं यही बता देता हूँ कि ये तीनों इंटरवल को डिनोट करते हैं. कैन आई से इंटरवल बोल के समझ में आ गया ना? yes Yes, sir. पहले Yes sir. ये चौथा इज नॉट एन इंटरवल. ये सिर्फ आइसोलेटेड वैल्यू है. आइसोलेटेड बोलने से समझ में आ जाना चाहिए. आइसोलेटेड मतलब जो लिखी है बस वही वैल्यूज खाली है. 4 और 6 बस जो लिखी है वही डिस्क्रीट वैल्यूज है, वही सिंगल वैल्यूज है. चलो कितना समझ में आता है देखते हैं. रेडी? yes Yes, sir. x be 3.99. No, sir. No sir. No, sir. Okay, can x be 4.1? no sir Sir. It is not an interval. ये इंटरवल है ही नहीं. जो वैल्यू लिखी है बस वही हो सकती है. Can x be 4? yes Sir. Can x be 6? yes Sir. अच्छा अब इम्पोर्टेंट कुछ बच्चे इसमें कबाड़ा कर देते हैं. Can x be 5? No, sir. No sir. जो लिखी है बस वही वैल्यूज होगी. बट अगर ऐसा लिख दिया x belongs to 4, 5, 6. अब तो 4, 5, 6 तीन वैल्यू हो सकती है ना? yes sir Sir. Yes, sir. 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है. तो कैन आई से ये सब ब्रैकेट समझ में आ गए? Sir, yes कॉलम है वो थोड़ा बाहर है, मतलब दिख नहीं रहा है. अब दिख रहा है? Yes sir. सर अब दिख रहा है. आई थिंक सब दिख रहा था वैसे तो, बट अभी भी दिख रहा है बच्चे जो तो बच्ची बोल रही थी. हाँ सर अभी दिख रहा है. ओके चलो इसके बारे में शॉर्ट में कुछ लिख लो जल्दी से. शॉर्ट में 2 मिनट्स में जो लिखना है. सर एक डाउट है. नाम बोल पहले. सर जो आपने फर्स्ट केस में ओपन ब्रैकेट्स का बताया जिसमें 4 एक्सक्लूड करना है. बिल्कुल सर वो वाला नहीं, सेकंड वाला जिसमें इंक्लूड करना है उसके लिए 3.9 बार को अगर हम लोग फ्रैक्शंस में लिखते हैं तो 4 आता है ना, तो उसको कैसे इंक्लूड करना? क्या 3.99 को 4 लिखते हैं. 3.9 बार को फ्रैक्शंस में 4 लिखता है ना, क्योंकि अब रुक जा, 0.9 अब बार रुक का जा, राउंड ऑफ करके 1 आता है. अब रुक जा. क्या 3.9 बार इज अ फिक्स नंबर? इट इज एन इररेशनल नंबर. सर इट इज अ रैशनल नंबर. नहीं इट इज वो 3.99 नहीं. 3.9 बार तो एक्चुअली बस क्या है, वो इररेशनल नंबर ही. वो तो उसको एक्सप्रेस कर रहा है रैशनल में, वो अलग चीज होती है. बट 3.9 बार इट इज एन इररेशनल नंबर. 3.9 बार का मतलब क्या है? 999 कितनी बार है? कम ऑन बता कितनी बार? कंटिन्यू होते रहता हाँ है. कंटिन्यूस कितनी बार है? तू वर्ड यूज कर लेगा, देखना कितनी बार. बहुत बार. इनफाइनाइट बार है. कम ऑन एग्री कर. यस सर. Yes sir. Agree. नहीं नहीं इनफाइनाइट बार है. इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट इज अ फिक्स नंबर और जस्ट अ सिंबल टू राइट वेरी वेरी बिग. Symbols out. हाँ सर पर वैसे तो 0.3 बार भी अनडिफाइंड है. हाँ तो वो तो इरेशनल है ना बच्चे. सब इरेशनल नंबर है. वो कोई फिक्स सर नंबर 0.3 बार इरेशनल है. रैशनल होगा ना, क्योंकि वो 0.3 फिक्स नंबर रिपीट हो रहे हैं. फिक्स नंबर रिपीट हो रहे हैं. हाँ ठीक है, लेकिन वो क्या बस इनफाइनाइट टाइम तो है ना. हाँ सर. तो सर पर 3.9 बार तो 4 ही हुआ ना बाय डेफिनेट. मतलब वैसे डिफाइन किया है ना. इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स दैट. बस ये अब सुन एक बार. 3.9 बार जो भी तो बोल रहा है, क्या कैन आई से दैट इज 3.9999 इनफाइनाइट टाइम्स? Yeah. You can. यस और नो? Yes sir. You. यस सर. हाँ तो क्या ये तो 4 के फिर- बराबर है तेरे हिसाब से? क्या ये 4 है? हाँ सर. नहीं ये 4 नहीं है बच्चे. No. ये 4 माइनस है. 4 से जस्ट छोटा नंबर है. कम ऑन एग्री कर. वो Yes. जब तू उसको बोल रहा है ना कि एक्सप्रेस करके उसको लिख रहा है, वो उसकी टेंडिंग वैल्यू लिख रहा है. टेंडिंग वैल्यू इज नॉट सेम एज एग्जैक्ट वैल्यू. हाउ कैन बी 3.999 जो छोटा है 4 से, वो 4 के बराबर थोड़ी ना है. वो 4 की तरफ टेंड कर रहा है. कम ऑन बहुत क्लोज है 4 की तरफ, बट दैट इज नॉट 4. ऐसे तो फिर 0 प्लस भी 0 हो गया. सर 1/3 तो 0.333 एक होगा. बच्चे से बात कर रहा हूँ तो उससे बात Okay, करने से sir. बच्चे 1 मिनट है ना. एक पर
ऐसे तो फिर 0 प्लस भी 0 हो गया, कमॉन 0 प्लस भी 0 के बहुत क्लोज है। तो क्या 0 प्लस 0 है क्या बच्चे? Sir, but when I say 3.9 bar, I'm talking about the full infinite tail at the same time. No, not as you keep adding more nines. क्या हुआ? When you are saying 3.9 bar, I'm talking about the full tail of nines altogether, तो वो right? Not as the that you are value as wrong. like we add more nines. So that you are talking in a wrong way, बच्चे। 3.9 बार का मतलब full नहीं होता है, full मतलब होता है finite times. Is it finite times or infinite times? तू बस मुझे वो जवाब दे दे। Infinite times. तू बस मुझे ये जवाब दे दे। Is it finite times 9 or infinite times 9? Infinite times. बता जल्दी से, यही बच्चा बोलेगा। हाँ sir, infinite times. Infinite times. Is infinite countable? No sir. तो फिर how can it be fixed tail, full tail? हाँ sir. No, सर वैसे मैंने पूछा था, मैंने बोला कि डिफाइन वैसे किया। हाँ बच्चे थे यार, ऐसे तो क्या, देखो मैं तुम्हें बहुत सारी फनी वे बताता हूँ। बचपन में क्या हर चीज इतना इजीली समझा नहीं सकते ना कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट को इतना पूछ। तुम्हें 6-7 क्लास में समझाते तो गोल गोल चक्कर नहीं आ जाते? तुम्हें तो जीपी के फॉर्मूला तक ये बताते हैं, कमॉन याद करो कि सर नहीं सर, मतलब नहीं चुप रहो, सुन तो सही, सुन। तुम्हें तो जीपी के फॉर्मूला भी ये बताते हैं कि r ग्रेटर देन 1 के लिए ये होता है, r लेस देन 1 के लिए ये होता है। बोलते नहीं बोलते हैं? कमॉन बताओ। हम लोग तो सेम यूज करते हैं, उधर बदल के। बोलते नहीं बोलते हैं बचपन में यार, इस r ग्रेटर देन 1 के लिए ये है, r लेस देन 1 के लिए ये है, ऐसा बोलते नहीं बोलते हैं? कमॉन बोलते हैं। हाँ सर। बट क्या ये दोनों डिफरेंट है क्या? कमॉन तुम जेई के बच्चे हो, सेम है दोनों। तो वो तो एक्चुअली क्या बचपन में थोड़ा सा क्लैरिटी रखने के लिए वो ऐसा कुछ बोल देते हैं, बट दैट डजंट मीन वो सही है। 3.9 बार इज नॉट 4, मतलब इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 4। कम ऑन थोड़ा सा कन्विंस होके बोल, डोंट बी रिजिड इन दैट पार्ट। बच्चे तेरे ही बात कर रहा हूं मैं। 3.9 बार इज नॉट एग्जैक्ट 4, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 4, दैट आई एग्री। पूरा अभी 1.5 घंटा पढ़ा है अभी तक, और 15 मिनट है। हाँ बच्चे, बट ठीक है, सबको समझ, सब बच्चे तेरे से ही पूछ रहा हूँ, थोड़ा बहुत रिजिड मत बन। 3.9 बार इज इनफाइनाइट टाइम्स 9, तो इट इज नॉट एग्जैक्ट 4। एग्जैक्ट मींस एग्जैक्ट। तू बता क्या 4 एप्पल और 3.9 बार एप्पल ये बराबर तो नहीं बोलेगा ना? हाँ 3.9 बार एप्पल तो नहीं है। कौन भी रिजिड, वो क्या बचपन में थोड़ा ऐसा बोलते हैं टेंडिंग वैल्यू और वो सब, तो उनको टेंडिंग वैल्यू को समझाना थोड़ा होता है, उनको टाइम वेस्ट, उनको ना पैसे इतने मिल रहे हैं समझाने के लिए, समझ रहा है तू? तो वो बोल देते हैं वो तो सेम है, बट दैट डजंट मीन सेम। नहीं सर, क्योंकि मैंने कहीं देखा था कि एक्चुअली इस पे डिबेट चल रहा था। बच्चे ऐसे तो बहुत सारी चीजें बोलते हैं, वो डिबेट होता है, और 3. वो अलग चीज है। हाँ वो एक्चुअली मैथमेटिशियंस को डिसाइड करना था कि 3.9 बार को अलग सा वैल्यू दे या वही वैल्यू दे दे, और डिफाइन करके वैसे 0.9 बार को 1 रख डिफाइन करके। जैसे देखो अगर तूने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो पता है क्या 0, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर तूने कॉम्प्लेक्स नंबर सुना है कभी? प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी? हाँ सर सुना है ना? तो उसमें भी बोलते हैं कि 0 को प्योरली रियल नंबर बोले या प्योरली इमेजिनरी बोले, उसमें भी डिबेट चलता रहता है। वो भी डिबेट चलता रहता है ना, तो उसमें चलता रहता है वो, अब हम आर्ग्यू भी नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें, अभी तो तुमने केमिस्ट्री पढ़ा है, केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन की दुकानें लगेगी। किसकी लगेगी? एक्सेप्शंस। तो बहुत सारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, हमें वही एक्सेप्टेबल होगा जो जेई को एक्सेप्टेबल होगा। करेक्ट? हम कोई डिबेट करने तो ना बैठे। अच्छा, सब बच्चों ने थोड़ा इसके बारे में लिख लिया? यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। कहना से अगर कुछ छूट गया तो बाद में स्क्रीनशॉट से कंप्लीट कर लोगे ना? हाँ सर। यस सर। आई एम प्रोसीडिंग देन। ओके चलो, ओके अब इन सारे आंसर्स को ब्रैकेट में लिख के बताओ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग in bracket notations. x greater than 4 को ब्रैकेट में लिखो। जैसे फर्स्ट पार्ट मेरे साथ ही बोलो, क्या लिखोगे बताओ? x greater than 4 को क्या लिखोगे? एनीवन? x ब्रैकेट 4 ब्रैकेट। अगर एक बच्चा कोई सोच नहीं पा रहा, उसको मैं थोड़ा सा आराम से समझा सकता हूँ। कहना इसे x greater than 4 का मतलब है कि 4 से बड़ी सारी वैल्यूज है। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो कहना इसे 4 पे तो ओपन आएगा। कम ऑन एग्री करो, क्योंकि x एग्जैक्ट यस एवरीवन। यस सर। अच्छा 4 से बड़ी कहाँ तक है? 10 तक है, 1000 तक है, 10,000 तक है। तो अगर मैं इतना लिखूं तो सब बच्चे एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी तक?
Yes, sir. Yes, yes, sir. अच्छा, अब नेक्स्ट चीज एग्री करो कि इनफाइनाइट इज नॉट अ फिक्स नंबर टू अटेन टू गेट दैट. कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. इनफाइनाइट तो पे आपस कभी भी क्लोज ब्रैकेट आ ही नहीं सकता, हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा. कम ऑन, एग्री करो. Yes, Sir. Yes, sir. एंड माइनस इन्फिनिटी विल ऑलवेज, ऑलवेज मतलब ऑलवेज, डिपेंड करता ही नहीं है. बी इन विच ब्रैकेट्स? Open. Open bracket. Those are not fixed number to be attained. That means everyone will speak up. Second का क्या आंसर होगा? X greater than equal to 4 का क्या आंसर लिखूंगा? Those brackets Belongs those brackets Bracket or comma infinite open bracket. नहीं open bracket. ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट. एक मिनट, ये सही लिखा है क्या? नहीं, गलत लिखा सर. नहीं गलत लिखा है. क्या गलत लिखा है? Infinity को open bracket. Bracket. नहीं हो सकता ओपन ब्रैकेट. चलो बाकी सारे फटाफट करो. बेसिक चीज है बट यस इंपॉर्टेंट है. जल्दी करो ये सब. तो ये इंटरवल नोटेशन डिसजॉइंट इंटरवल्स के लिए बना है ना? चलो फटाफट कर लो. हो गए होंगे आई होप तीनों. सर डाउट है. सर नेम जैनम शाह. अभी बच्चे, अभी क्वेश्चन के बारे में डाउट है तो नो डाउट, अभी मैं कुछ नहीं समझाऊंगा. फर्स्ट सेकंड में डाउट है तो पूछ सकता है. नहीं सर फिफ्थ में वो क्या लिखा है मतलब? तो वो यू क्या है? यू का मतलब यूनियन. वही अभी मैं समझाऊंगा. अभी मैंने समझाया नहीं है बट उसका मतलब होता है यूनियन. यूनियन का मतलब क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा. बट अगर एक वर्ड बोलूं तो ट्राई कर सकते हो. वन वर्ड में हिंट देता हूं, ट्राई करोगे? Yes, sir. इसको इंक्लूड करके मतलब ऐड. वन वर्ड का मतलब है एडिटिव. अब जो सोचना है सोचो, फिर मैं समझाऊंगा. ठीक है. सर यूनियन के बाद क्या है? कर्ली ब्रैकेट 7. जो सोचना है सोचो, फिर मैं समझाऊंगा. सर आंसर चैट में लिख रहे हैं. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्यों लिख के टाइम वेस्ट कर रहा है? मेरे साथ ही बोल देना जब मैं पूछूं. ये कोई क्वेश्चन है या ये एग्जांपल है? Example. जस्ट टू डेवलप योर थ्योरी. लास्ट पार्ट पे जल्दी से सोच लो. और अगर थोड़ा सा और सोचना है कि थोड़ा और दिमाग लगाना है तो ये मैं उल्टा यू बना रहा हूं. और इसको वन वर्ड में हिंट दे रहा हूं. इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का हिंट कॉमन वैल्यूज. चलो ये दोनों हिंट लेके दोनों के बारे में सोचो तो सही. कैन आई से फ्लैगशिप बच्चों से तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि सोचेंगे खुद से. हाँ सर. यस तो सोचो. यूनियन का हिंट दे दिया मैंने. यूनियन का मतलब होता है एडिटिव. और वन वर्ड में एक और हिंट दे सकता हूं, और इसका मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड. जो सोच रहा है सोचो. क्या यूनियन और इंटरसेक्शन मैंने अभी तक समझाया है या नहीं समझाया है? सर इंटरसेक्शन और होता है ना? नहीं होता. यूनियन और इंटरसेक्शन मैंने समझाया है या नहीं समझाया अभी तक? नहीं समझाया. नहीं समझा. आई वांट यू टू ट्राई ऑन योर ओन. और जितना सोच रहे हो करो. So intersection. So do we see the answer चैट पे or the last one? चैट पे लिख दो. मुझे तो एक्चुअली और फिफ्थ का आंसर देखना है कि तुम लिखोगे कैसे. और अटपटा है तुम्हारे लिए. करेक्ट अनिशा.
बट हमारे चैप्टर में बहुत यूज आएगा, इसलिए अभी हमें पढ़ना तो है ही है उसके बारे में। नेक्स्ट क्लास में यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सर नेक्स्ट चैप्टर सेट्स एंड रिलेशंस है क्या? अरे नहीं यार, हमारा क्वाड्रेटिक है, अभी तो क्वाड्रेटिक बहुत लंबा चलेगा, देन वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रिगो। ओके, बट इफ यू आर थिंकिंग यूनियन इंटरसेक्शन मतलब सेट्स, ऐसा कुछ नहीं। यूनियन इंटरसेक्शन हमारे इस चैप्टर में बहुत यूज आएगा, उसका सिंपल मीनिंग समझना है हमें बस। करेक्ट पुष्पम, करेक्ट जन्म, ललित नो। अच्छा, कभी इट इज एन और एक्सेप्टेबल, आपको लास्ट 2 के देना है। पर एक बार ये बताओ, क्या ये एक्सेप्टेबल नोटेशन है क्या? कभी ऐसा लिखा हुआ आएगा क्या ऐसा? नहीं सर, नहीं सर। ये कभी सही है कि ओपन ब्रैकेट में तुम्हें पता है, एक मिनट, ओपन ब्रैकेट तुम्हें पता है इंटरवल होता है क्या? ऐसा इंटरवल कभी लिखा है क्या 3 का? नहीं सर, 2 ही होते ओह, हैं इंटरवल, रेंज रेंज नहीं होता है। लिखते हैं, दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेबल। इसको लिखना भी हो तो ऐसा लिखोगे कि 4 to 6, और अगर 5 इंक्लूड नहीं करना है तो -5, या फिर ऐसा लिखोगे x बिलोंग्स टू 4 to 5 यूनियन, जिसका मतलब अभी मैं समझाऊंगा, यूनियन 5 to 6, ऐसे लिखते हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इंटरवल में हमेशा 2 नंबर ही आएंगे, ऐसे a to b या क्लोज a to b। वो तो कर्ली ब्रैकेट में 2, 3 कितने भी आ सकते हैं। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू रेडी। चलो, इनफ टाइम। फिर फोर्थ का, थर्ड का आंसर बताओ पहले, कैसे लिखोगे? x belongs to close bracket 4, close bracket 4, comma 10 open open bracket, bracket. comma 10 open bracket. थर्ड में किसी को डाउट? नो सर। नो सर। ओके, फोर्थ में कैसे लिखेंगे? 4 से छोटा है मतलब 4 Open तो bracket. right X belongs side to minus -2 negative open infinity, infinity, comma infinity, 4 open bracket. से ओपन ब्रैकेट। 4 से छोटा है मतलब कब तक छोटा है? माइनस इन्फिनिटी तक ना बच्चों? यस सर। माइनस इन्फिनिटी से 4, और 4 पे भी ओपन, माइनस इन्फिनिटी पे तो हमेशा वैसे ही क्या होता है? ओपन। ओपन ब्रैकेट। सर इंफिनिटी पे ओके। फोर्थ पे किसी को डाउट? No, sir. नो सर। नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सुन लो, यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में खुली आंखों से और खुले कानों से सुनोगे। अभी तो आज का टाइम खत्म हो जाएगा, तो आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो डोंट बी इम्पेशेंट, यार और समझना है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैं सिर्फ तुम्हें थोड़े थॉट्स देना चाहता हूँ ताकि तुम सोच के आओगे, चलेगा ना? अभी पूरा नहीं समझा पाऊंगा, इज दैट ओके? या फिर मैं कुछ नहीं समझाऊं? तुम क्या चाहते हो, बोलो, थोड़ा सा बोलूं? थोड़ा सा। तो इम्पेशेंट नहीं रहोगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, चलेगा? Yes, sir. यस सर। यूनियन को डिफाइंड इस तरीके से किया गया है। यूनियन का मतलब है एडिटिव। एडिटिव का मतलब ही यही है कि और का मतलब ये है कि ये और ये दोनों को कोई भी सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर फाइनल आंसर में होना चाहिए। वाइल इंटरसेक्शन उसको उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है कॉमन वैल्यूज। कॉमन एज अ वर्ड सेज, दोनों को कॉमन मतलब बताओ क्या होगा? दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, एग्री करो? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब होगा एंड both should be satisfied। तो इंटरसेक्शन तो लिखते ही तुम्हें देखना समझ में आ जाने वाला है। कम ऑन, मैं एग्जांपल लिखता हूं, तुम एग्री करना कि x belongs to 4 to 6 या 4 to 10 and x belongs to 5 to 12। अब हमारा फाइनल आंसर x वो होना चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। कम ऑन, एग्री करो? 5 and 10। Yes, sir. जितना बोला है बच्चों, मेरे साथ थोड़ा सीखो कैसे पढ़ना, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तुम्हें पता है कोई बच्चा सोच रहा है, लेट्स नॉट पनिश हिम। तो जितना मैं पूछूं उतना बोलो। एंड का मतलब क्या होता है? सर आपकी वीडियो की वजह से दिख नहीं रहा है। हाँ बच्चे, एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन वैल्यूज। तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए ना? यस सर। यस और नो? Yes, sir. तो मुझे बताओ, क्या 4.1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है या एक को ही सेटिस्फाई कर रहा है? एक को सर। एक को satisfy तो 4.1 फाइनल आंसर में होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। होगा। ओके, व्हाट अबाउट एग्जैक्ट 5? एग्जैक्ट 5 क्या होगा। दोनों को satisfy कर रहा है? होगा। तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कैन आई से 5 तो फाइनल आंसर में होगा ना? Yes, sir. यस सर। And can I say 5 is the smallest value which is common in both of them? Yes, sir. यस सर। Come on, इतना तो एग्री करो कि सही लिखा है मैंने। Yes.
Yes, sir. Yes. ओके 5.2 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके 9.1 तक सब सेटिस्फाई कर रहा है? कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. 0.99 तक दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? Yes, sir. Yes. And 10 is the biggest value which is satisfying both of them. Come on. Yes, Yes, sir. इसका आंसर क्या आ गया? 5 से 10 क्लोज्ड। क्या सबको समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. Yes. इसी No, चीज को sir. हाँ रुक जा बच्चे, इसी चीज को नंबर लाइन से फिर पूछना तेरा डाउट, मैं वापस समझाऊंगा। इसी चीज को हम नंबर लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबको नंबर लाइन पता है क्या होता है? Yes, sir. हाँ सर पता है। जैसे ये Yes, 0 है तो sir. यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज या नेगेटिव वैल्यूज है ना, बट 0 की इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे को अभी। मुझे किसकी इंपॉर्टेंस है? 4 से 10। तो देखो ये रहा 4, ये रहा 10। तो यहाँ पे बोल रहा है x बिलोंग्स टू 4 से 10। तो अब मुझे कुछ रिप्रेजेंट करना है। तुमने नंबर लाइन सबने देखा होगा, तो 4 से 10 को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, yes, sir. ये लाइन क्या दिखा रही है कि यस ये रीजन को दिखा रही है कि 4 से 10 की सारी वैल्यूज है। कम ऑन दिखना चाहिए तुम्हें, दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes. Yes. ये 5 से 12, तो 5 से 12 को कैसे दिखाऊंगा? 12 मार्क करना पड़ेगा, यहाँ मार्क कर दिया, 5 यहाँ पे मार्क कर दिया। कहना है ये ग्रीन ब्लू पेन से सबको 5 से 12 दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ब्लैक इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट रीजन, ब्लू इज रिप्रेजेंटिंग द सेकंड रीजन। किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. ओके कहना है सबको अब एक तरीके से नंबर लाइन पे 4-5 रीजन दिख रहे हैं। जैसे ये रीजन कौन सा है? -∞ से 4 वाला है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये वाला रीजन कौन सा है? 4 से 5 वाला है। 4 to 5. हाँ, ये वाला रीजन कौन सा है? 5 से 10, 5 to 10. ये वाला रीजन कौन सा है? 10 to 10 12, से 12. 10 to 12. 12। और ये लास्ट वाला रीजन कौन सा है? 12 to infinity. कहना इससे मुझे वो रीजन लेना है जिसमें दोनों लाइंस दिख रही हो। कम ऑन Yes. एग्री करो। Yes, sir. 5 to 10. Yes, sir. 5 क्या to 10. ये हाँ क्या ये वो आंसर होगा क्या? क्या यहाँ पे दोनों रीजन दिख रहे हैं क्या मुझे? No, sir. No, sir. इस रीजन में मुझे दोनों रीजन दिख रहे हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्या इस या ये अंडरलाइन वाला रीजन में भी दिख रहे हैं क्या दोनों? No, No, sir. sir. क्या इस रीजन में दिख रहे हैं क्या दोनों? No, No, sir. sir. No, sir. बताओ कहना इसे एक ही रीजन में दोनों दिख रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. That is this region. So therefore this will be the answer. तो बताओ ये कौन सा वाला रीजन है? कम ऑन 5 to 10. 5 to 10. 5 to 10. to 10. और 5 पे भी दोनों प्रेजेंट है देखो, और 10 पे भी दोनों प्रेजेंट है। तो 5 से Close 10 bracket. हो Close गया। bracket. Yes. तो कहना इसे इंटरसेक्शन को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं और नंबर लाइन की हेल्प से भी कर सकते हैं एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes. और मैं शुरुआत में चाहता हूं तुम दोनों से सोचो, बट बाद में चाहूंगा कि तुम कैसे सोचो? नंबर लाइन डायरेक्टली सबको आना चाहिए। तो लास्ट टाइम वापस समझा रहा हूँ डायरेक्टली, उसके बाद डाउट आना ही चाहिए। तो ध्यान से सुनो, x बिलोंग्स टू 4 से 10 बोल रहा है, ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू 5 से 12। एंड का मतलब है कॉमन वैल्यूज दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 4.1 इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए 4.1 आंसर में आ ही नहीं सकता। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? No, sir. है डाउट बच्चे? No, sir. No, sir. 4.9 भी नहीं आ सकता, No, sir. बट 5 तो आ सकता है क्योंकि 5 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसलिए 5 Yes. आया है, इसलिए 5 फाइनल आंसर में प्रेजेंट है। 5.1 भी आ सकता है। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. और इस नोटेशन में 5.1 प्रेजेंट है। जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5.9 भी आ सकता है, दोनों में प्रेजेंट है। देखो 5.9, कम ऑन, खुली आंखों से देखो भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो अब यार कम ऑन, इतना भी गए गुजरे नहीं हो। कहाँ तक आ सकता है? 10 तक सारी वैल्यूज आ सकती है, इसलिए आंसर 5 से 10 है। और 5 पे भी क्लोज है और 10 पे भी क्लोज है। 10.1 पहले में नहीं आ रहा है, इसलिए फाइनल आंसर में नहीं होगा। सिंपल। No. Yes, sir. क्या किसी को डाउट इस बारे में? सर है सर। बोल बच्ची, सर जो आपने क्वेश्चन क्या दिया डाउट है? बोल। सर, क्वेश्चन दिया उससे मतलब ही नहीं है मुझे। मैंने सब बच्ची क्वेश्चन जो दिया उससे भी मैंने मतलब ही नहीं। मैं अभी उस पर समझाने पे गया हूँ क्या? नहीं गया हूँ। मैं तो सिर्फ इंटरसेक्शन का मतलब समझा रहा हूँ ना। yes, लिटिल बिट पेशेंस ना बच्ची, वो उस पे आएंगे, हम बाद में आएंगे।
अभी सिर्फ इंटरसेक्शन, ये वाला कॉलम में कोई डाउट है? नो सर। चलो यूनियन के बारे में भी समझा देता हूँ, फटाफट सुनना आप। यूनियन का मतलब होता है एडिटिव, मतलब आइदर ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, आइदर ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन इट विल बी प्रेजेंट इन, बोलो जल्दी से। हाँ बच्चों कंप्लीट करो। देन इट विल बी प्रेजेंट इन व्हाट? फाइनल आंसर। यस। क्या ये क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. का मतलब क्या होता है? दोनों या दोनों में से कोई एक या क्या? दोनों। दोनों में से कोई एक। सोच के बोला, दोनों में से कोई एक या दोनों भी चलेगी? दोनों भी चलेगी। दोनों। कुछ भी चलेगा सर, दोनों। हाँ। मतलब आपने जो ऑप्शंस दिए दोनों चलेंगे। एटलीस्ट इसका मतलब एक्चुअली सेम है एटलीस्ट की तरह, मतलब ये नहीं है कि एक ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों भी सेटिस्फाई हो रही है तो भी फाइनल आंसर में होगा। क्या समझ में आ रहा है इस बात का मतलब? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो अब मेरे साथ आराम से सुनना बच्चों। एनीवन में मतलब ये भी है एटलीस्ट वन है, इट्स सेम एज कि दोनों भी सेटिस्फाई हो रहे हैं वो भी आंसर आएगा। तो अगर मैं लिखूं एक 4 से 10 और यूनियन बोलूं x बिलोंग्स टू 5 से 12, फाइनल आंसर मत बोलना, अभी जितना मैं पूछूं उतना ही बोलना बस। वापस रिपीट कर रहा हूं, योर फाइनल आंसर शुड हैव वैल्यूज which is satisfying any one of the condition। any one का मतलब है या तो दोनों में से एक या दोनों भी कर रहा है तो भी चलेगा। क्या ये सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. both। तो जल्दी से बताओ लाउड वॉइस में, 4 आंसर में आएगा फाइनल आंसर में, यस और नो? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल आएगा। व्हाट अबाउट 3.9 आएगा क्या? No, No, sir. sir. No, sir. ओके, व्हाट अबाउट 4.9 आएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये तो डाउट नहीं होना चाहिए, ये फाइनल आंसर में इसलिए है क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों में से किसी एक को भी करेगा तो फाइनल आंसर में होगा। कॉन्फिडेंटली बोलो यस। Yes. Yes, sir. Yes. व्हाट अबाउट 5 फाइनल आंसर में होगा? Yes, sir. Yes, yes, sir. Sir. व्हाट अबाउट 5.2 फाइनल आंसर में होगा? Yes, Yes, sir. sir. सर फाइनल आंसर में होगा? Yes, sir. Yes, sir. बच्चे रुक गए थे, कोई डाउट है क्या 7 में है या बिल्कुल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सर। ओके, व्हाट अबाउट 7.9? So I have a Yes, question. sir. Yes, sir. व्हाट अबाउट 7.9? Yes, Sir, होगा, होगा। Yes, sir. हाँ बच्चे, आप कुछ पूछ रहा तो जल्दी पूछ। So I have a question in union as it is. So shouldn't union be and because it satisfies both values and No. this? नो, एंड का मतलब क्या होता है बच्चे? दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। वाइल यूनियन का मतलब होता है एंड एज वेल एज और, मतलब एक तरीके से वो दोनों को भी सेटिस्फाई कर रहा है और दोनों में से एक को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट इज द कलेक्टिव वर्ड यूज्ड फॉर यूनियन। वाइल एंड मींस, एज द वर्ड सेज एंड, कि इट शुड सेटिस्फाई बोथ ऑफ देम, दिस शुड बी सेटिस्फाइड एंड दिस शुड बी सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब है दोनों को सेटिस्फाई होना चाहिए। वाइल यूनियन इज द वर्ड यूज्ड फॉर कि इट इज सेटिस्फाइंग बोथ ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम। ओके, तो अभी रुक जाओ। Okay, so What about 9? Satisfying both Yes, of sir. them? Yes, sir. Yes, sir. What about 9.9? Yes, sir. Yes, sir. Sir. What about 10? Yes, sir. Yes, sir. Okay, आप सोच समझ के बोलना। What about 10.1? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को डाउट है क्या 10.1 में? No, sir. No, sir. नो सर। Okay, what about 11.9? Yes, sir. Yes, sir. What about 12? Yes, sir. Yes, sir. What about 12.1? No, sir. No, sir. तो भाई अब मुझे डिसअपॉइंट मत करना, अच्छे से सोच समझ के फाइनल आंसर लाउड वॉइस में बोल दो। X belongs to 4 to 12. 4 से 12 इसका आंसर है देखो, बट यहाँ पे एंड का आंसर क्या आया था देखो ध्यान से, सेम क्वेश्चन में 5 to 10. 5 to 10. सो वन वर्ड में अगर कोई तुमसे पूछे एंड का मतलब क्या होता है, इट शुड सेटिस्फाई आइदर वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम। Both. both of Both. और यूनियन का मतलब क्या होता है? आइदर वन ऑफ Either one of them. each one of them. अगर वन वर्ड में बोले तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड और यूनियन का मतलब होता है क्या? or और इंग्लिश में ये तो मैथमेटिकल वर्ड हो गया, मान लो इंग्लिश में यूनियन का मतलब होता है एडिटिव, दोनों को ऐड करके रीजन बोल दो। कैन आई से लाइक दैट? दोनों को ऐड करके रीजन Yes, बोल दो। sir. Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन कन्विंस हो जाओ, यूनियन का मतलब एडिटिव Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन वैल्यूज। कम ऑन एग्री करो।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I know Yes. 5-10 minutes stretch हो गए हैं, but come on यार, मजा आ रहा है. तो x belongs to 2 to 7 intersection with x belongs to 3 to 9. Loud voice में चिल्ला के आंसर बोलो. X belongs 3 to 7. Belongs to 3 to 7. 2 to 9 close. कोई डाउट यहाँ था? No, Oh, sir. sir. Come on, किसी को भी डाउट है क्या? 2 to 7, 3 to 9, आंसर 3 to 7. 3 to 7, no doubt, sir. Okay. अब 2 सेकंड रुकना. 2 सेकंड से पहले कोई नहीं चिल्लाएगा. Is that a promise ना? Yes. हाँ. Yes, फिर sir. सोचने का टाइम देना. X belongs to 3 to 9. सबको 2 सेकंड सोचने का टाइम देना. Union मतलब एडिटिव. 2 सेकंड के बाद बोलना 3 to जब मैं 9. चलो बोलो. 2 बोल दो, to बोल 9. दो. 2 to 9. 2 to 9. 9 to 9. 2 to 9, 2 to 3 to 9, 9. 3 to 7. क्या आंसर है? 2 to 2 9. to 9. 9. 2 to 9. यस, एक मिनट. क्या सबको क्लियर है? इसका आंसर होगा 2 to 9 बच्चों. Yes, sir. Yes. Yes, sir. किसी को डाउट अभी तक यूनियन और इंटरसेक्शन में छोटा सा भी? No, sir. No, sir. से उस क्वेश्चन पे अभी नहीं आता हूँ, तुम सोच के आओगे और मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करूंगा. चलेगा? Yes, sir. Okay, Yes. sir. Yes, sir. एप्लीकेशन रख सकते हो क्योंकि टाइम हो गया है. Yes, sir. सर नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? अब रुक जा बच्चे, एक मिनट. 10, रुक 15. जा, चुप. सुन लो अब चीजें. आज नोट सबको कंप्लीट करना है. दैट इज द फर्स्ट होमवर्क. क्या सबने सुन लिया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये यूनियन इंटरसेक्शन वाला पोर्शन सबको मुझे नोट्स में नेक्स्ट क्लास में देखना है. मैं रैंडमली वीडियो ऑन करा के देखूंगा. सबने सुन लिया? प्रॉमिस? Yes, sir. सेकंड, आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, बस नोट्स का रिवीजन करके आना. चलेगा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और नेक्स्ट क्लास तुम्हारी शेड्यूल के हिसाब से कब थी? 10:15. Sir, 10, 10:15 को है. हाँ, तो मैं सर को बोल दूंगा थोड़ा सा लेट चालू करें, बट अगर ज्वाइन कर सकते हो तो कर लेना. चलेगा? क्योंकि अभी मैं लास्ट मिनट में बोल नहीं पाऊंगा उनको. चलेगा ना बच्चे? नो प्रॉब्लम. Yes, sir. कौन यार, इतना थोड़ा सा आज मजा आ रहा था तो हमने स्ट्रेच कर लिया, बट इतना मैनेज कर सकते हो ना बच्चों? चलोगे? The class was great, sir. ओके बच्चे. पर नेक्स्ट क्लास में और तुम्हें मजा आएगा जब हम थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आज तो थोड़ा थियोरेटिकल था. बट इज इट ओके एवरीवन? एंजॉयड? Yes, sir. sir. Enjoyed a lot. Yes, sir. Yes, sir. चलो बाय. विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास बच्चों. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. sir. Bye, sir. Hi, sir. Thank you. मैं तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजूंगा, ज्वाइन कर लेना. ठीक है? Bye, sir. Thank you. Have a nice day. Yeah. Okay. Hi, sir. Thank you. टेक केयर बच्चों. बाय बाय. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.